Hello बच्चों. So I am back with the same topic, that is basic principles of organic chemistry. And in basic principles of organic chemistry, in the previous lecture we had seen fission of covalent bond. Fission means breaking of covalent bond. During a chemical reaction, when attacking reagent attack on a substrate, when reagent attack on a substrate, some bond breaking takes place, and that breaking is what breaking of covalent bond is what we call as fission of covalent bond. In this fission of covalent bond, there are two types of fission takes place. One is homolytic fission, and another is heterolytic fission. In case of homolytic fission, there is a symmetrical breaking of bond that we had seen, and that will lead to the formation of free radicals. Whereas in heterolytic fission, in case of heterolytic fission, it is an unsymmetrical breaking of covalent bond leading to the formation of oppositely charged ions. So oppositely charged ions, cation and anion. इसी में एक और एस्पेक्ट देखा था हमने. If carbon carries positive charge cation, we call it as carbocation. This we had seen. If carbon carries negative charge, we call it as carbanion. Okay? So carbocation and carbanion, they are also the oppositely charged ions formed when bond breaking takes place in a unsymmetrical manner. Now, those organic reactions which are taking place through homolytic fission are called as free radical reaction. Free radical reactions. Free radical reactions or non-polar reactions. Non-polar reactions. Non-polar reactions, why we are calling them as non-polar? Because no oppositely charged ions, no polar solvent required. So free radical which are formed during homolytic fission, such organic reactions are termed as free radical reactions or non-polar reactions. Correct है? Likewise, those organic reactions which takes place through heterolytic fission producing oppositely charged ions in presence of polar solvent are known as polar reactions or ionic reactions. Ionic reactions or polar reactions. Okay? कौन सी polar reaction? Heterolytic. और नॉन पोलर कौन सी हो गई? होमोलिटिक. अब हमें क्या पढ़ने का है? नेक्स्ट पॉइंट, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसके बारे में पढ़ना है. तो वी टेक द नेक्स्ट हेडिंग, अटैकिंग रिएजेंट. Attacking reagent. There are two types of reagent which attack on substrate, and they are, one is electrophilic reagent, and another is nucleophilic reagent. So electrophilic reagents are those reagents which are electron seeking reagent, and nucleophilic reagents are those which are nucleus or positive charge seeking reagent. ये reagent बच्चा लोग कहाँ काम आने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन में. कहाँ पर रहेंगे ये? रिएक्टेंट में. इनका काम क्या है कि ये सबस्ट्रेट पे अटैक करना. इसीलिए हम क्या कहते हैं? अटैकिंग रिएजेंट. Without the attack of reaction,
polar or heterolytic breaking of bond does not takes place. That means ये जो attacking reagent है, ये reactions हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? Heterolytic breaking of covalent bond or unsymmetrical breaking of covalent bond producing oppositely charged ions taking place in polar solvent, and such reactions are known as polar or ionic reactions. So polar or ionic organic reactions taking place by the reagent which attack on substrate. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि जो सबस्ट्रेट पे अटैकिंग रिएजेंट रिएक्ट करने वाले हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो टाइप के अटैकिंग रिएजेंट है. वन इज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, अनदर इज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. लेट अस डिस्कस फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. So we will take notes on electrophilic reagent. This is what we will discuss here. Now electrophilic reagent. What do we mean by electrophilic reagent? ये word electro तो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो फिलिक यहाँ पर टर्म आ गई, the term philic means seeking. फिलिक का मीनिंग है सीकिंग. सीकिंग मीन्स वी सीक गुड मार्क्स, वी सीक गुड लाइफ. ओके, तो फिलिक मीन्स सीकिंग. तो ये दोनों को कंबाइन कर दिया तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स सीकिंग, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, और सीकिंग फिलिक मीन्स सीकिंग. तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट. तो हम इसे याद रखेंगे. इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट. दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट. अब इसी को और थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये प्यार की भाषा, ये याद रहेगी हमको. तो इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट आर व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट. व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग? व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन deficient reagent. Electron deficient reagent. They are having less electron in their molecule, so they are electron deficient reagent. Now as they are electron deficient, where does they will attack? On substrate, है ना. अब ये attacking reagent है, substrate पे कहाँ अटैक करेंगे? अटैक ऑन सबस्ट्रेट. सबस्ट्रेट का मीनिंग समझ गया है आपको, है ना. सबस्ट्रेट, अटैक ऑन सबस्ट्रेट एट अ पॉइंट ऑफ, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अब ये they will attack on substrate at a point of high electron density because they need electron. They are deficient in electron, in need of electron. That's why they are electron seeking or electron loving reagent. So where does they should attack? Where availability of electron should be maximum. Correct है?
तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, डेंसिटी से मतलब क्या है कि जहां पर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल रहेंगे, वो जगह को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और कहां पर मिलने वाला है ऐसा सेंटर उसको? सबस्ट्रेट पे। तो ये पॉइंट को फिर से क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट अटैक ऑन सबस्ट्रेट, attack on substrate at a point of high electron density, जहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगी उसे हम कहेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नाउ as they are deficient in electron, they are electron seeking reagent, they are electron loving reagent, they always in a need of electron, they attack at a point of high electron density. What charge we can expect on such ions? है ना? अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसके पहले हमने पढ़े थे, है ना? तो जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो वो प्रोटॉन बन गया, H पॉजिटिव आयन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। आपको पता है Na पॉजिटिव आयन, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं हम, है ना? ऐसी कोई रिएक्शन लिखते हैं ना, सोडियम 281 11 इसका एटॉमिक नंबर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, रिमूव किया, तो यहाँ क्या बच गए 2 and 8 and 1 इलेक्ट्रॉन इज आउट, तो इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। यानी नेचुरली इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 11, लेकिन वो 11 इलेक्ट्रॉन में से एक अगर उसने दे दिया तो बच गए कितने? 10। यानी ये ओरिजिनल के कंपैरिजन में डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मुझे दे सकते हो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयंस। और बोलिए इसमें क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कुछ, ये हाइड्रोनियम आयन H3O positive, I will write the name hydronium ion। अभी आपने पढ़ा था कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोकेटायन, सॉरी अभी आप उसको कार्बोकेटायन बोलो, हम पहले उसको कार्बोनियम भी बोलते थे। तो कार्बोकेटायन आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोकेटायन आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन। तो आप सिर्फ कार्बोकेटायन ही ध्यान में रखिए। तो ये है मिथाइल कार्बोकेटायन, पॉजिटिवली चार्ज, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। एंड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। Br+1 इसे हम कहेंगे ब्रोमोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव we call this as nitronium ion. So all these are the positively charged ions, है ना? All these are positively charged ions, can act as what? Can act as electrophilic reagent. Electrophilic reagent are also lovingly called as इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना? वो रिएजेंट वगैरह उतना बोलने के बदले हम क्या उसको बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड दे आर इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट, डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। नेचुरली उसके एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे बेटा? यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या बनेंगे? पॉजिटिवली चार्ज आयंस, है ना? तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस, ये सारे एग्जाम्पल काय के बन गए? इलेक्ट्रोफाइल्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स? इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ऐसे ही ये सब क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम बना लेंगे, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। Neutral molecules are also electron deficient। अब ये क्या बात होगी
कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, आप न्यूट्रल भी बोलते हो, न्यूट्रल यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, दोनों को बैलेंस कर दिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। जैसे कि ये AlCl3 को देखो, तो एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव और क्लोरीन पे 1 नेगेटिव है, तो ऐसे 3 क्लोरीन है तो 3 नेगेटिव आ गए। फिर से एक बार, AlCl3 इज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल। क्यों न्यूट्रल बोलेंगे? क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 क्लोरीन, जिसपे 1 क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे 3 क्लोरीन लिया आपने, तो यहाँ पर 3 क्लोराइड आयंस आ गए, 3 क्लोरीन, तो नेचुरली ये AlCl3 न्यूट्रल हो गया। ऐसा ही एक और एग्जांपल आपको पता है, ZnCl2, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एक और एग्जांपल लिखता हूँ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये भी न्यूट्रल होगा। बोरॉन पे 3 वैलेंसी है, फ्लोराइड पे 1, BF3 मॉलिक्यूल बनेगा। एक और एग्जांपल बनाता हूँ, BeCl2, बेरिलियम डाइक्लोराइड। अगेन दिस इज बेरिलियम इज बाइवेलेंट, 2 पॉजिटिव है, 2 क्लोरीन, न्यूट्रल। तो बात चल रही है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो जाते हैं। दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल मैंने लिखा हूं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहां पर क्या हो रहे हैं? दे आर deficient in electron. Yes, they are deficient in electron. मैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को यहाँ लिखता हूँ। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में क्या देख रहे हैं हम? ये Al ने क्या किया? 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, सही है। अब एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, तो ये एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कोवेलेंट बॉन्ड, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूसरे क्लोरीन का, यहाँ ये तीसरे क्लोरीन का, सही है। सो 3 कोवेलेंट बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन which are bonded with aluminium creates a neutral molecule. That neutral molecule, जरा देखेंगे ध्यान से, how many total electron around aluminium? Around aluminium, how many electrons? Total 6 electrons around aluminium, and 3 electrons of chlorine are also counted. So once again, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। Why these neutral molecules are electrophilic reagent? तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये डाउट आता है, मन में ये विचार आता है कि न्यूट्रल है फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे? अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये न्यूट्रल AlCl3 मॉलिक्यूल कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। सो दिस इज एल्यूमिनियम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमने एक थ्योरी पढ़ा था जिसे हम कहते हैं ऑक्टेट थ्योरी, ये आप सभी को पता है। ऑक्टेट थ्योरी इज व्हाट which suggests that there are 8 electrons in the outermost shell. During bond formation, atom can gain, lose or share electrons so that its octet should be completed. तो अब देखो ये एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या? हम बोलते तो हैं कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्टेट बेटा यहाँ कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या हो गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला एग्जाम्पल हुआ। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। We call it as incomplete octet. Incomplete octet means less than 8 electrons, और जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे?
electron deficient molecule. This is what we call as electron deficient molecule, and such electron deficient neutral molecules are termed as electrophilic reagent. देखिए बहुत सिंपल तरीके से एकदम फंडामेंटल के साथ आपको समझा दिया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ये किस तरह से आपको दिख रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए तो वो क्या हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, यहाँ सारे पॉइंट्स आ गए हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के। शॉर्ट नोट्स में आपको ये लिख सकते हैं आप, शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक reagent. Okay, so your short note, your screenshot is over. So what do we mean by electrophilic reagent or electrophiles? They are electron loving or electron seeking reagent. Okay. They attack on substrate at a point of high electron density. And example में positively charged ions are electrophiles. तो ये इतने सारे पॉजिटिवली चार्ज आ गए, उनके नाम भी लिख दिए हमने। और दूसरा एग्जांपल हमने न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बताया आपको। ऑल दीज न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। हमारे लिए कीवर्ड क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रोफाइल। ये वर्ड, ये सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे। Incomplete octet neutral molecules are electrophiles. करेक्ट है। तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंड टाइप का न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। Nucleophilic reagent. Now, what do we mean by nucleophilic reagent? उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, it is also known as nucleophiles. जैसे इलेक्ट्रोफाइल्स बोला है तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफिलिक reagents are also termed as nucleophile. Nucleophiles are positive charge. अब इसका नाम ही है न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसा बोल सकते हैं दे आर न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज लविंग रिएजेंट। चार्ज सीकिंग और लविंग रिएजेंट। जस्ट अपोजिट चल रहा है उसके, है ना। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस। फिलिक का मतलब आपको बताया हमने सीकिंग, करेक्ट है। तो न्यूक्लियस सीकिंग, न्यूक्लियस लविंग और पॉजिटिव चार्ज लविंग रिएजेंट आर व्हाट वी कॉल एज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। फिर से एक बार, व्हाट डू वी नो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट के बारे में क्या जानते हैं? दे आर न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज सीकिंग और लविंग रिएजेंट, करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? तो अब ये पॉजिटिव चार्ज लविंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज की कमी है, पॉजिटिव चार्ज सीकिंग है, तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट। दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन in their molecule, so they are electron rich reagent. They are ready to donate electron. अब rich है तो ready to donate electron, ज्यादा के इलेक्ट्रॉन है इनके पास में, rich in electron है। They are nucleus और positive charge seeking reagent है, they are ready to donate electron.
Where does they will attack on substrate? Attack on substrate. Substrate फिर से याद दिला रहा हूं आपको, है ना, substrate कहाँ रहेगा? reactant के साइड में. Attack on substrate at a point of, अब आप क्या बोलेंगे? At a point of low इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उस जगह पे अटैक करेंगे. इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे यानी चांसेस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा. सिंपल है. अगर पैसे नहीं रहेंगे तो वो गरीब हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं है. ऐसा बोल दिया या ऐसा बोलो वो गरीब है. गरीब है यानी पैसे नहीं है. एक जस्ट समझने के लिए. वैसे पैसे से कोई अमीर और गरीब नहीं होता है ना, वो अलग है फिलोसॉफी, कभी आपसे बात करेंगे हम, है ना. अटैक ऑन सबस्ट्रेट एट अ पॉइंट ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर. इलेक्ट्रॉन कम यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा. करेक्ट है. अब क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे. अब हमने क्या कहा कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट, तो इसके एग्जाम्पल तो आप बना सकते हो. इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो पूरे हेलोजन हैलाइड आयंस लिख सकते हैं. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड. अब मुझे ऐसे नेगेटिवली चार्ज आयंस बताओ. हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड में नेगेटिव चार्ज है. दे आर ऑल नेगेटिवली चार्ज आयंस. तो ये पहला एग्जाम्पल क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज आयंस आर न्यूक्लियोफाइल्स. दे आर रेडी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर पॉजिटिव चार्ज सीकिंग. नेगेटिव चार्ज है इनके पास, तो इनको कौन सा चार्ज अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाला. दे आर लुकिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज. अब इसमें एक और है कि कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलिए, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, रिच इन इलेक्ट्रॉन, हम जिसको कहते हैं लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल. अब ये अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर का मतलब है जो बॉन्ड बनाने के काम नहीं आता है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये बेटा नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रही है हमको, इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो बॉन्ड बनाने के काम नहीं आ रहा, एक्स्ट्रा पड़ा है, तो वो क्या करेगा? डोनेट कर सकता है, तो ये डोनेट कर दे. तो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. और ऐसा एक एग्जाम्पल देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो क्वेश्चन में भी आता है. वाटर मॉलिक्यूल. वाटर तो न्यूट्रल है ऐसा हम बोलते हैं, नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से वाटर इज अ न्यूक्लियोफिलिक reagent. It is a nucleophile. It is positive charge loving reagent. It is rich in electron. देखिए कितना रिच है ये, है ना, कितना है? रिच है कि इसके पास ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. And these 2 lone pair of electrons it can easily donate and will act as nucleophile. मैंने बताया यहाँ पर they are ready to donate electron because they are rich in electron. और richness कैसे आ गई? Through lone pair of electron. तो water is a nucleophile. एक और एग्जाम्पल, ये कंपाउंड आपने पढ़ा है ROR, इसे हम कहते हैं ईथर. इस ईथर में ये ऑक्सीजन फिर से 2 लोन पेयर के साथ में है. तो ये 2 लोन पेयर जो आ गई, तो ये क्या हो गए? सभी मॉलिक्यूल देखने में तो न्यूट्रल है, लेकिन दे possess
lone pair of electron or free pair of electron which they can donate easily and will act as nucleophile. So nucleophilic reagent are nucleus or positive charge loving reagent which are supposed to be rich in electron. They are ready to donate electron and attack on substrate at a point of low electron density where chances of getting positive charge becomes maximum. एग्जाम्पल में नेगेटिवली चार्ज आयंस हमने लिखा, तो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस आ गए। उसके बाद दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लिया विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है वो डोनेट कर सकता है। इसी का एक और एग्जाम्पल हमने लिखना चाहिए था, अभी याद आ रहा है मुझे, ये क्या है, मिथाइल कार्बेनियन। जैसे हमने लिखा था मिथाइल कार्बोकेटायन, तो वैसा ही क्या बन गया बेटा यहाँ पर, ये मिथाइल कार्बेनियन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बेनियन आर न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटायन आर इलेक्ट्रोफाइल। So this is all about nucleophilic reagent and electrophilic reagent. इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट और इलेक्ट्रोफाइल, या फिर ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ बनेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, गिव डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। चलिए ये पूरे का स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपके लिए रेडी रेकनर का काम करेगा। फटाफट एक ही एट अ ग्लांस यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अटैकिंग रिएजेंट। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम और दूसरा पढ़ेंगे। देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।